प्लीज बिस्वजीत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. आई एम श्योर दिस विल हेल्प. कम ऑन गाइस. ये सारे आपके सपोर्टर्स हैं एंड आई एम श्योर दैट दे लव यू टू मच. भीड़ बढ़ती जा रही है, बाहर तक बहुत लोग हैं, सो आप नर्वस मत होइए. कुछ इस फिल्म के बारे में हमें बताइए. See, this film is very close to my heart. First, actually, when I came to Mumbai in 2002, and that time I was very young, and I have come from a very small village. And when I came to Mumbai, then I realized, like, in Assam, when I opened my window, I had seen only, like, that only the greenery, पेड़ पौधे था. And जब बॉम्बे में आया, and suddenly when I opened my window, then I only see that concrete buildings. So that time I realized, and that time I was very worried in terms of, मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये बॉम्बे में मैं कैसे रहूँगा, बिकॉज पेड़ पौधे से मैं इतना दूर चला आया, मैं यहाँ कैसे रहूँगा. देन इन 2003 I joined Janu Barua sir. He is my mentor. 15 times national award winner filmmaker Janu Barua sir. तो सर के साथ जब मैंने काम करना चालू किया, then I started writing a story about environment. मैंने जो फील किया वो मैंने लिखने चालू किया. Then that time I thought, like, if you say some stories about environment, that people will think, like, it's a documentary, or it's a preachy ways to tell about environment. Then I stopped writing it, like, and after that, after a couple of years, when मैं बॉम्बे में हवा पानी के साथ जब ये हो गया, then I realized, like, I should again write this story. Then in 2011, I completed my screenplay, and that time I realized this film should, like, made, and it should be not in a preachy way, through commercial ways, through, like, light-hearted ways. So this film is not about environment. It's like, it talks about many things in terms of small cities and bigger cities. We are chasing something in life, like, we don't know where we are going, but still we are, like, chasing something. We don't know about that. So it's a, like, it's a nuclear family trapped in a concrete jungle of metropolis, where we are trying to show that journey of this family's this thing. So I hope that people will like it, and I hope that the Palas Daya, a film, then Ira, then Kimslin, then Rishad Abbas, then, and सबसे important बात ये है कि ये project जब Maya Kholi madam, I am just for only because of her, like, I am standing here for in this project, like, मैं तो उसने इतना support किया ये project के लिए. I am very thankful to her. And ये जो project में हमारा involve हुआ है, all the cast and crew, they are very big in terms of very senior to me. I am glad enough to, like, to have that kind of actually team. मुझे इतना अच्छा लगा. पलाश दा से मैंने बहुत सीखा, ईरा से मैंने बहुत सीखा, and I am still learning about filmmaking and about the storytelling. So, so thank you very much for coming, and I would like to thank, like, all the special guests for, like, warming this evening. So बहुत गर्म होने वाला है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. Thank you very much. Can anyone believe that he was nervous? क्या बात है सर, superb. बोल दिया और जो बहुत बढ़िया बोला. तो हम और सब यहाँ वहाँ देखो, इधर उधर देखो. Nobody is seeing you. Yeah, so Janjari just left it. She has some dinner with her family, so she's a head of sustainability. So initially we are CERE, ऐसा ये जहाँ approach CERE, Center for Environmental Research and Education. So we work for environment, and we also do consultancy services for environment. So actually the base is the movie is based on carbon neutral. So carbon neutral is all about when actually they have given us a data about how much they have did wastage during the movie making and everything, filming everything, the travel, hotel, everything. So the energy they have wasted in the form of carbon dioxide
we converted that into an energy, form of energy in metric tons. So we divided by some factors and blah 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 blah. So then in order to offset the carbon dioxide, we are planting 600 trees for this movie, and we have already planted 300 plants in Mumbai, in Bhiwandi. So few are left, so we might, like, struggling for it, we might get chance to, you know. And apart from that, I just wanted to add on, हम लोगों ने जो भिवंडी और जो भी जिसके साथ हम लोगों ने जो प्लांटेशन हो रहा है, हम लोगों ने उन लोग के साथ एक MOU बनाया है जहाँ they won't be able to cut this plant till 15 years. बिकॉज हम लोग ऐसे मतलब सी एज ए फिल्म मेकर आई डोंट वांट टू लाइक ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सी दैट जो CERE आया जो उन लोगों ने जो ये लेके आया है आइडिया लेके आया है तो आई थॉट इफ यू आर सेइंग समथिंग अबाउट द लाइक अबाउट एनवायरनमेंट सो वी शुड बी लाइक हम लोगों ने भी दिखाना भी सही है कि हम लोगों ने ये कर रहा है. Yeah. So we should, appraise these kind of a movie. So I think it's a first Indian movie. So we should have movies like that only. Yeah, Baatha, that's brilliant. Now we all know what's India's first carbon neutral feature film. Ladies and gentlemen, we also have the producer with. Radio क्यों नहीं join करती? Wonderful, wonderful. तो ईरा जब थिएटर करती है, we always have a quick interview with her. तो अच्छी बात है आज as like on stage we're sharing the stage together. Lovely film. Please tell us something about your character. I play Ananya, Palash's wife. As has been mentioned, as you can see from the trailer, this is a story, and Biswajit also spoke about. Ananya's got a lot of shades. She's really irritating, especially to these two. She's a nagging wife. She's got a lot of shades, so it was really fun to play her. Also, as you can see, I've worked on an accent. So, Biswajit Dada himself was the biggest inspiration for me. क्या बोलूँ? Accent तो आपको वही हाँ सुप साप सब सुप साप सुप साप हो हाँ सुप साप हो जाइए प्लीज सब लोग. So what else can I say about Ananya? I don't want to give away too much. Let Palash say things about Ananya. He'll tell you lots of stories. डॉक्टर साहब आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी गोइंग टू सी यू एक्टिंग इन अ फिल्म हिंदी फिल्म. बताएं कुछ. हाँ तो guys thank you first of all thank you everyone for coming here. Thank you guys. God bless you. Thank you so much. These kind of films जो थोड़ी छोटी होती हैं इतनी बड़ी बजट नहीं होती हैं जिसमें मुझ जैसे स्टार होते हैं उसमें आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है. सलमान खड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैं सलमान नहीं हूँ जबकि मैं भी बनियान पहनता हूँ लेकिन मैं सलमान नहीं हूँ और इस तरह की फिल्में हमारे देश में ज़्यादा बनती नहीं है. सो पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग दिस फिल्म. थैंक यू सो मच गाइस. गॉड ब्लेस यू. इस फिल्म के बारे में उर्बिन बहुत कुछ बताने को बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है और मैं सबके बारे में कविताएं लिख सकता हूँ. आपके बारे में तो मैं कविताएं क्या छंद लिख सकता हूँ. बट आई जस्ट से वन थिंग कि हम लोग आई थिंक हमसे ज़्यादा खुश यूनिट दुनिया में कोई नहीं था और इसका सारा क्रेडिट माया जी को जाता है और बिशु को जाता है. मैं इसको बिशु बोलूँगा क्योंकि ये मेरा भाई है इसलिए बिशु को जाता है. और हम सब जो इस यूनिट में आए हम सबको सचमुच लग रहा था कि हम एक परिवार है. वो दूसरी बात है कि मुझे सचमुच लग रहा था कि ये मेरी बीवी है बट हमें सचमुच लग रहा था कि हम एक परिवार हैं और हम लोग सब साथ हैं. वी वर अ फैमिली. हमारे उसी तरह के नोक झोंक और झगड़े होते थे. एक दिन सचमुच में लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई. हम लोग बहुत नोक झोंक कर रहे हैं बट वी वर रियली इन द कैरेक्टर एंड दैट्स व्हाई वी हैड नो रोमांटिक सीन्स इन द फिल्म. So everybody who's coming to watch this film for something hot will get nothing. So Trying to get it right till the last day. I was really trying hard on screen and off screen. Sorry ma'am. but हुआ नहीं. But anyways, I just want to say this कि we were a very happy unit which was really committed to this film. हम लोगों की जो commitment थी वो बहुत strong थी. हमें पता था कि हम ऐसे एक फिल्म कर रहे वाले हैं जो कि which will face a lot of hurdles and Maya ji and Bishu have faced a lot of hurdles in finding the right buyers, getting it out in the right way, doing everything the right way. But तभी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इनकी हिम्मत देख के हमें हिम्मत मरी. सचमुच इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी. इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो कि ये बिलीव करते थे more than anything else. और इसी बिलीफ के अंदर हमारी बिलीफ थी which is what we came and did and we just came and did whatever we could.
The music you see, the acting you see, everything that you see in the film is actually inspired by that happiness and the faith we have had in this project. I want to tell all of you guys as much as you can, especially the journalist community over here, guys. आपको इस फिल्म का मैसेज आके लेके जाना पड़ेगा. आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कि एक मैसेज कैरी करती हैं, which is sensible, which is sensitive, और जिसके अंदर ये कोई pretension नहीं है. हम लोग we are not trying to glamorize or hype up something which is, we are still really trying to be very committed to what we are doing. Even the music that we have made, even the film that we have made, both are the same things. मेरा किरदार जो है हम सब जो फिल्म में करते हैं, आप लोग सब आके अगर फिल्म हॉल में आके टिकटें खरीदेंगे और लोगों को इंकरेज करेंगे, आई थिंक दैट विल बी ग्रेटर फॉर अस. आप लोग वहां पे आके देखिए. टुडे द एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. Yeah, so today the entertainment is going to be different. I just want to say this again and again, guys. Thank you so much. God bless you. Each one of you stay महफूज. Thank you so much. Thank you. क्या बात है, महफूज. क्या यादें मतलब ताज़ा कर दी सर आपने. Anyway, विश्वजीत जी, please join us back. माया जी, please वापस आ जाइए. And don't be nervous this time, क्योंकि अब it's time for us to unveil the poster. हमारे आज के स्पेशल मेहमान को भी मैं बुलाना चाहूँ. Can we have the poster, please? Ma'am, आप कुछ कहना चाहेंगी while we get the poster? Well, good evening, friends. It's a pleasure to be here today, and I would like to congratulate Kohli Productions for this beautiful venture which they have undertaken. Today is the launch of their music, and we have already heard the title song, and Dr. Palash has sung it. And I'm sure it's going to be a beautiful evening. The songs are going to be very nice. Though I'm a music lover, I'm not a music critic. But I feel that music which appeals to you and which automatically sends your feet tapping and you like to close your eyes and listen to that tune, it's enjoyable music. So it's going to be that today. Well, as far as the film goes, again, it is congratulatory, because they have come with a message. It is an art film plus commercials. Both have combined, but it is a message for the people. Conservation of environment, which is the major issue today. As Deputy Mayor of City of Mumbai, I would like to really congratulate, because it is the first carbon neutral film which is required. Waste of energy cannot be allowed in our city, in our country today. And they have replanted trees to conserve the environment. So they don't just preach, but they have brought it into practice. That's what's required. It's going to be, it's going to be a lovely film, I know that. There are veteran actors, there are new artists. We have got a lovely girl here. What's your name, dear? Prisha. Okay, Prisha. She is the star of the movie. And I don't know what is the end of the film, but I'm sure it's going to be very enjoyable. Congratulations, and it's going to be a big hit. Thank you so much, ma'am. That's wonderful. Can we please get the poster? Ladies and gentlemen, ऐसा ये जहां. जोरदार तालियां होनी चाहिए, please. And now it's time for us to unveil the music CD too. यहाँ पे मेरे साथ जो दो शख्स खड़े हुए हैं, शायद मेरे सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग दोस्त हैं. हम लोग नॉट ओनली आर वी फ्रेंड्स, वी आर नेबर्स इन द सेम बिल्डिंग. और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्चुअली हम अमर, अकबर और एंथनी हैं. सो आज जब ये म्यूजिक लॉन्च होना था, मुझे लगा नहीं कि जिन लोगों ने शायद यूफोरिया को और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे हर एफर्ट में, उनसे अच्छा कोई और हो सकता था इस एल्बम को लॉन्च करने के लिए. बट मैं किसी और को भी स्पेशली स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, एरिक और वाजिद के साथ. लिलित मैम, यू हैव टू कम ऑन स्टेज. यू हैव टू कम ऑन स्टेज, प्लीज. यू हैव टू. गाइस, लिलित दुबे, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. कम ऑन मैन, कम ऑन.
How can you not be here? So, guys, standing with all these people, I can just tell you this, that you know, जैसा भी ये जहां है, अगर इस जहां में अच्छा संगीत बनता रहेगा और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी तो अच्छा ही रहेगा ये जहां. तो आप लोग ऐसे जहां को आप लोग जरूर सपोर्ट करिए. My first film was Phil Hall, but when the film released, there were only empty halls. There was nobody came to see the film. So I think the first thing that happened with me was the fact that I realized that cinema, unless it was really sensitive and sensible, I wouldn't really like to do it. So I think after a long time I got a chance to do Mumbai Cutting, which was 2007, and then now. But then the thing is, never got the offer which was sensitive and sensible enough for me to come and do a film. Here was one. Even the music was such that I could do whatever I wanted. You know, I was not told कि इस तरह का music बनाओ, कोई धड़कता फड़कता बनाओ. I was not told anything. I was just said, we want good music and we want music which you know you believe in and we can appreciate. So जब इस तरह की once you get this kind of freedom, anybody would like to make be a part of a film. But it's not that Euphoria has been doing what we do. You know, we've been taking our albums, we do our concerts. Euphoria, what I do, that's what I do. You know. But if there is something which makes me want to do something which is an extension of Euphoria, I'm always ready to do a film, and here was one. You know, I'm very proud of this film. Very, very proud. I'm not allowed to review my own work. That's one of the rules of the game. But I would rate it very high in the sense that what Palash talked about earlier, it's made with a lot of heart. It's a very simple film. We're not trying to say anything very heavy in this film, but there is a lot to say. And I think that's what people will relate to, most of all. Rose, Jyoti ji, first of all, I don't think that we had to do anything with that. I think Bishwajit was very clear in his head when he made the script that he didn't want to make a documentary. Also, it's not a preachy film. हम किसी को कोई चीज preach नहीं कर रहे हैं. We are just reacting to the world around us. This is the world around us. ज्योति जी, हम भी when we walk onto the road, हम लोग गंदगी देखते हैं, केले के छिलके देखते हैं. We ourselves we mock people from the northeast. People call them चिंकी बुलाते हैं, उनको नेपाली बुलाते हैं. ये सब चीज हमारे आसपास होती है. हम में से कोई भी इसके बारे में कोई स्टेप लेता नहीं. एक्चुअली अगर आप देखें, effectively we don't take any steps. Here was a film which was just addressing these issues, but it was being done in a very, very everyday life. You know, अगर आप मुझे इस फिल्म को किसी फिल्म के साथ कंपेयर करने की बोलेंगे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ. पर अगर आपको याद है कि 80s में बासु चैटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी ऐसी फिल्में बनाते थे which was just about रोजमर्रा की जिंदगी. घरौंदा जैसी एक पिक्चर थी, या फिर छोटी सी बात जैसी एक पिक्चर थी, जो कि एक हर रोज हम लोग सबके साथ सुपरमैन नहीं है जो कि 50 लोगों को मार देते हैं और जिनको देख के लड़कियां बस पागल हो जाती. मेरी बीवी नहीं पागल हुई मेरी पिक्चर में, तो आप क्या बात कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. हम लोग एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो कि हम जैसे रोजमर्रा के लोगों की जिंदगी के बारे में है. डॉक्यूमेंट्री नहीं है, लेकिन फिल्म है जो विच इज अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल स्टेइंग इन अ मेट्रोपोलिस. एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो मेडिकल की पढ़ाई की है ना, उससे मेरी जिंदगी के फंडे बड़े क्लियर कर दिए थे. मुझे पता चल गया था कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी सच्चाई होती है वो डिजीज और डेथ होती है. एवरीथिंग एल्स इज अ मिराज. जिंदगी में बाकी सब भरम है. एंटरटेनमेंट तो स्पेशली भरम है. तो वंस यू एक्सेप्ट दैट थिंग इन लाइफ, नो, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू लूज योर ईगो. जिंदगी में ईगो नहीं होता फिर. तो फिर मुझे जिस काम के लिए हायर किया जा रहा है, मैं उसको बखूबी करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मुझे बोला गया है कि मैं एक्टिंग करूंगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा. साथ में बोला गया कि मुझे म्यूजिक भी करना है तो मैं अच्छी तरह म्यूजिक भी करने की कोशिश करूंगा. बट एट द सेम टाइम आई थिंक मैंने जो इस फिल्म के लिए मुझे लगता है कि जो मेरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि जो इस फिल्म में जो भी थे, चाहे ईरा थी या किम्सलिन थी या प्रीशा थी, आई थिंक व्हाट आई कुड डू वाज के जो ये लोग कर रहे थे उसको मैं अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाऊँ. सो आई फेल्ट दैट व्हेन वी डिड आवर सीन्स टुगेदर, हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि हम लोग सचमुच इस चीज के अंदर घुस के रियलिटी के साथ इस चीज को करें. तो आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एनीबॉडी कैन मेक टू द फिल्म. यू शुड नॉट एक्चुअली बी थिंकिंग अबाउट योर रोल, यू शुड एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन्स रोल. कि अगर मैं इस तरह से कर पाऊंगा तो विल शी बी एबल टू शाइन मोर, विल किम्सलिन बी एबल टू शाइन मोर. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द म्यूजिक, तो मैं जब भी किसी चीज का पार्ट होता हूं ना ज्योति जी, मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं म्यूजिशियन हूं, क्या मैं एक्टर हूं. मैं पलाश सेन हूं और मुझसे जो चीज आपको चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूं. ये फिल्म के द्वारा मैं प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए नहीं ट्राई कर रहा था. ये फिल्म के द्वारा मैं ये दिखाने के लिए ट्राई कर रहा था जो मैं फील कर रहा था. इन टर्म्स ऑफ
ये फिल्म में ये भी दिखाया है कि सपोज मैं मेरा 2 साल का बच्चा जब आसाम जाएगा तो वो आसामीज़ मेरा फादर या मेरा पेरेंट्स के साथ वो आसामीज़ में बात नहीं कर पाएगा, बिकॉज लाइक ही विल लर्न हियर, ही विल लर्न ओनली हिंदी एंड इंग्लिश और मराठी। सो जो मदर टंग इन्फ्लुएंसेस ये जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इंडिया में इतना सारा हमारा लैंग्वेजेस है, लिटरेचर्स है, तो ये फिल्म के द्वारा ये भी दिखा रहा है। तो मैं ये खुद फील किया, मेरा जब बच्चा जब असम में जाता है, मेरा पिताजी के साथ जब बातें नहीं कर पाते, दैट आई कुड फील लाइक जो मैं आसामीज लिटरेचर में जानता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरा बेटा नहीं जाके आगे जाके नहीं पढ़ पाएगा। तो इट्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस फिल्म, and apart from that I am trying to bring that northeast whatever that northeastians we face always, like we face racism, आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा है। तो I am trying to make a statement through this film, not in a very this thing, हम लोगों ने एग्रेसिव वेज नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का लोगों को लोग बहुत बोलते हैं, छिंकी बोलते हैं, अलग अलग जो बोलते हैं कि आप कहाँ से है, अलग चाइना से है क्या, ये सब जो क्वेश्चंस एवरी डे वी फेस। सो दीज आर द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग, नॉट इन ए प्रीसी वे, लाइक इट्स वेरी लाइट हार्टेड वेज थ्रू दिस फिल्म। नहीं, आप जब फिल्म को देखने के लिए जब देखेंगे तो आपको ये फील नहीं होगा, बिकॉज दैट फिल्म हम लोगों ने जैसे स्क्रीन प्ले डिज़ाइन किया इन टर्म्स ऑफ जैसे स्टोरी आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने कोई ये इट्स ए जर्नी ऑफ ए फैमिली, हम लोगों ने ये जो फैमिली के थ्रू ही पूरा जो चीज़ें हैं हम लोगों ने ट्राई कर रहा है देखने के लिए। तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको ये फील नहीं होगा कि हम लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोगों ने टारगेट कर रहा है। तो थ्रू द फिल्म वी आर ट्राइंग टू शो दिस काइंड ऑफ सब प्लॉट्स। Ira would like to say something. Just to respond to that, in any film that has a social message or whatever you want to call it, it becomes part of the fabric of the story. So this story is really of the family. They happen to be from Assam. They could be from anywhere. So the backdrop and the context and the cultural context of their situation and their lives is that they are Assamese. So as a result of that, the script looks at what else you could, and you talked about even the other aspect of what happens to the child. So there are all these things that exist. It's a migrant story also. So in a city like Bombay, people come from all over India, and what it does to you to live in a big city, what it can do to you, and how it can affect your life, the quality of your life. Palash, sir. Yeah. Right here. Yeah, bro. Euphoria has been around for 17 years, right? Yeah, correct. And you have limited your presence just for a couple of movies and TV shows. Yes. Could you tell me why did it take so long for the band to compose music for a movie, and what made you say yes to this movie? Bro, it was not about taking time to compose for a film. I don't think I was ready really. I was not really ready. Because as I told you, I have had some instances where I met producers who wanted a particular kind of music, and that was a little difficult for me because I think I'm versatile enough to make all kinds of music, but if somebody tells me that you have to make this kind of music, I think it's a little difficult for me. Not because I would rather take a more difficult way out. One is that. Secondly, bro, I'm very, very happy with what Euphoria has achieved. We are the only guys who are still existing in a scenario which is completely film based. We are the only non-film guys who are doing it, and there are others who are here also. Mansi is here, Suchitra is here. There are people who have really survived this entire film onslaught, and there are people other people who would believe in what I believe in. Having said that, I think as I told you, when once Bishwajit came to me and Mayaji came to me, they had a very simple brief. They said, we want your kind of music. We want the music that you believe in. If you make that kind of music, we are happy to have you. But the surprise was the acting part. I didn't know that they would give me. Actually, it's a tough role to do what I did. It's not as tough as Ira's role. Ira's role is very tough, but mine was also tough because that's not the guy I am. I don't take shit from anybody. So in the film, I had to be like हमेशा यूं करके और जो बोल रही हैं सुन रहा हूँ, that kind of thing. तो that's not my character. So it was very difficult for me. But I was really more surprised that he wanted me to act in the film. I've done my best. I just hope people enjoy it. How many songs are there in your movie, and what will be the genre of the song? Bro, there are 6 songs in the film.
You just heard Sotila, which is straight ahead, you know, it's rock and roll. Then Haya Ho you heard, that's Assamese folk. Then we have a song called Hey Ya, which is straight ahead euphoria, you know, the folk and the modern element that we mix. But then there are some surprises. We have a song called Everybody Party, which actually happens to be a party song. I've never made a party song in my whole life, so this was a challenge. Then we have a song called Aisa Ye Jahan, where Naresh Kamath has sung for us and Kaislin has sung for us. And finally, we have a very, very special song in the film, which is picturized on Kim Slin. Guys, nobody has spoken to Kim Slin. Kim Slin happens to play a very pivotal role in the film. She is actually, you know, really, she is actually the migrant, you know, who's actually come from Assam, and she's trapped in this country, and she's a little child who's growing up in a alien world. So this song has been picturized on her. We call it Nanni Munni Chadiya, and it's the first time. I want to say this very, very happily and proudly. I think it's the first time since Lakdi Ki Kathi, Kathi Pe Ghoda, since that song that a children's song has been made in a Hindi, you know, commercial Hindi film. And all, you know, I credit goes to Bishwajit for really conceptualizing a song like that. So we have a song like that. So there are 6 songs in the film. Every song has its own story. Every song has its own genre. Every song has its own attitude. I enjoy things like that. सर, हम आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार प्ले कर रहे हैं, और अगर ये किरदार आप प्ले कर रहे हैं तो रियलिस्टिक जो लाइफ है, रियल लाइफ होती है, उस लाइफ में क्या इस तरह का किरदार वो रोल प्ले करता है जो आप इसमें मैसेज देना चाहते हैं? प्रो, मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार इस फिल्म में एक्चुअली जो प्ले किया वो एक्चुअली विश्वजीत बोरा है. इसने ये पूरा किरदार अपने ऊपर बेस कर रखा है. ये एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करता है, इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अपनी बीवी का गुलाम है, और इसको सचमुच इस बात का बहुत दुख है कि लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स को अभी भी एक इंडियन होने का जो एक रिस्पेक्ट है वो नहीं देते. तो मेरा किरदार ही इस एक ऐसे इंसान के, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ फिल्म में, जो कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जो कि अब असम से आके अब यहाँ पे बॉम्बे में सेटल कर गया है. यहाँ पे सेटल करने के बाद जो कि हर रोजमर्रा की प्रॉब्लम वो मैं फेस करता हूँ. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरी बीवी और मेरे में हम लोग बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारे में कोई तालमेल नहीं है. देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. ओके, सो हमारे में कोई देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, बट एट द सेम टाइम आई एम द काइंड ऑफ गाय जो होता है जो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बस फूट पड़ता है. वही मेरा किरदार है कि जो पहले सुनता रहता है, जो कि मिडिल क्लास हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सहते रहते हैं और फिर एक दिन फटते हैं. वही मेरा किरदार. सर, मेरा सवाल इसी बात पे था कि जो किरदार आप निभा रहे हैं एक IIT का MNC में काम करने वाला, तो एक आम जिंदगी में जो आप चाह रहे हैं कि सफाई के लिए एग्रेसिव हो या कुछ भी हो, तो वो चीज होती है क्या आम जिंदगी में? एक IIT जो होता है वो अपने परिवार को लेकर ज्यादा वो होता है और अपने लाइफ में, लेकिन आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो मैसेज देना चाह रहे हैं. ब्रो, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप मुझे मेरी अपनी रियल लाइफ में अगर आप पूछेंगे, मैं ऐसे ही इंसान हूँ. मैं भी ऐसा इंसान हूँ, मैं भी इन सब इश्यूज को, बट देन क्या है कि क्योंकि मैं एक नोन इंसान हूँ, मैं एक थोड़ा फेमस इंसान हूँ, मैं ये सब चीज़ों को एड्रेस करूंगा तो एक मुहिम बन जाती है, यू नो, कि भाई दिस इज जो एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास आदमी होता है, वो बहुत सारे ऐसे इस देश में हैं जो कि अपने तौर पे बहुत काम करते हैं, जो कि सफाई करते हैं, जो कि अपने कॉलोनीज में झाड़ू लगाते हैं, जो कि इस चीज़ के लिए खड़े होकर लड़ाई करते हैं, जो कि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो कि ट्रेन में घुसते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा हो, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं. तो उस तरह के मिडिल क्लास लोग जो कि हिंदुस्तान में बसते हैं, और मैं जानता हूँ बसते हैं, उन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. पलाश सर, आप इस मूवी की शूटिंग के लिए आसाम गए होंगे अभी. यस. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, और वहाँ की स्पेशल सुपारी है तांबुल, वो आपने ट्राई करी कि नहीं? वो सिंगर है. मैं सुपारी नहीं खा सकता, मैं सिर्फ सुपारी दे सकता हूँ. नहीं, मैंने सुपारी नहीं खाई, बट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विश्वजीत का जो गांव है गोलाघाट, वहाँ पे गए थे, और आई थिंक हमारी जिंदगी, हम सब की जिंदगी के आई थिंक सबसे हसीन दिन थे वो. इतना एक तो इतनी खुशी थी वहाँ पर, पूरा जो एटमॉस्फेयर था बिल्कुल क्लीन था, हरियाली थी. आई थिंक ऑक्सीजन लेवल वाज मच मोर देन जो कि आपके बॉम्बे या दिल्ली में आपको मिलेगा. एट द सेम टाइम लोगों के अंदर जो एक सिंप्लिसिटी थी, वो देख कर मैं सचमुच हैरान हो गया, और मुझे सचमुच लगा कि इंसान शायद सभी सिंपल होते हैं, बट जब हम लोग एक बार शहर में आ जाते हैं, और जो यहाँ के जो एक जो दौड़ भाग होती है, जो कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, वो शायद हम लोगों को थोड़े
प्रैक्टिकल बना देते हैं या थोड़े कनिंग बना देते हैं, थोड़े क्लेवर बना देते हैं। लेकिन अगर अभी भी अगर आप हिंदुस्तान के गांव में जाएंगे ना, लोग बड़े सरल होते हैं। वो सरलता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो नलिया काई का जो कैरेक्टर देखा वो ऐसे ही एक गांव वाले पे बेस्ड है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ अपने किरदार में, मेरा किरदार भी इसी जद्दोजहद में फंसा हुआ है कि मैं एक्चुअली, मेरा दिल जो है असम में है, लेकिन मेरा जो जहां है इस समय वो मुंबई है, बट वो मेरे लिए सौतेला है। इसमें एक बात है, पर्यावरण की बात तो हुई है, इसमें पैसे के पीछे जो भाग रहे हैं उसके लिए आपने बच्चे से काम करवा आपने उठाया। बिल्कुल। तो ये आज की जो जिंदगी है उसको आपने किस तरह से इसमें कहानी में किस तरह से करवाया? प्रथम मेरा भी यही अनुभव है। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भी ये बहुत, मैं जब अपने गाने भी लिखता हूं बनाता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि लोगों को ये बात बोली जाए कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है, पैसे के पीछे भागना शायद इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने अपने किरदार में यह, अगर आप फिल्म देखेंगे, एक यही सिंप्लिसिटी है पूरी फिल्म में कि मैं जब ऑफिस भी जाता है तो हम लोग बस ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब मेरी बीवी मुझे फिल्म में कहती है कि यार हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मुझे आई डोंट सपोर्ट दैट। मुझे नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी। अगर हमारे पास छोटी गाड़ी, मेरे उतनी मैं अपनी पाँव पसारूंगा जितनी मेरी चादर है। तो ये एक्चुअली बड़ी ही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, हम सब इसके भाग हैं। मैं भी कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरे फैमिली में हम लोग सब डॉक्टर्स हैं। मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा, सब डॉक्टर्स हैं। और इस तरह की फैमिली को बिलोंग करने के बाद मुझे ये सेंटिमेंट पता है कि जो इस तरह की मिडिल क्लास जो फैमिली इंडिया में होती है ना, हम लोग सबके सब अच्छी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो मर्यादा हैं वो सारी हमारे हैं, सारे प्रिंसिपल्स हमारे हैं, एजुकेशन भी हम ही करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरी सोसाइटी का भार है वो मिडिल क्लास वाले ही बेयर करते हैं, वो हम लोग हैं। लेकिन चक्कर ये है कि जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, गवर्नमेंट शायद उन्हीं को शायद ध्यान देती है। आई फील दैट वे। अच्छा, पलाश, एक इसमें सवाल ये भी है कि क्या नॉर्थ ईस्ट और जो पूरे देश में दूरी है, ये फिल्म उस दूरी को कम करेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखिए ना, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ डेरिवेटरी वे, बट हिंदी फिल्म्स बॉम्बे में जो भी बनती है, मैं सिर्फ एक ही कल्चर देखता हूं, वो पंजाबी है। हर चीज में सिर्फ पंजाबी है। पंजाबी ही गाने हैं, पंजाबी ही शादियां हैं, पंजाबी ही गालियां हैं। मतलब नहीं यार, असम में भी अच्छी अच्छी गालियां हैं, क्या कहते हो? ऐसी बात थोड़ी है। तो क्या आपको भी कोई कड़वा अनुभव हुआ इस महानगर में? नहीं, ये तो हमेशा होते हैं। स्पेशली माई वाइफ, सी हैज़ दैट मंगोलियन फेसेस। मेरा इतना पता नहीं चलता, मुझे तो सब लोग बोलते हैं आप बंगाल से है, लेकिन लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। ये फिल्म के द्वारा हम लोग वो नहीं दिखा रहा है कि हम लोग सब अलग अलग है, हम लोग सब एक है। हाँ, ये सिटी में सब लोग आ रहा है। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ये फिल्म का जब हम लोगों ने व्हेन वी डिसाइडेड टू रिलीज द फिल्म आवरसेल्फ, उससे पहले मैंने 2-3 प्रोडक्शन हाउस से पूछ रहा था। तभी मुझे ये क्वेश्चन आया था। उन लोगों ने बोला था कि फिल्म जब मैं उन लोगों को दिखाया तो उन लोगों ने बोला था आपको क्या लगता है, दैट गाय ही टोल्ड मी आप लोगों को क्या लगता है ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फिल्म का, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ओनली 25% बेस है, बाकी तो पूरा 75 इज इन बॉम्बे। सब उन लोगों ने बोला कि ये आपको क्या लगता है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया विल सी द फिल्म। तब मैंने उसको पूछा कि अगर आसाम का या नॉर्थ ईस्ट का कोई लोग जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ एक फिल्म अगर मेरा गांव में देख सकता है, तब आसाम का इससे क्यों नहीं देख सकता है? तो मुझे तब आई वॉज वेरी हर्ट एंड आई टोल्ड हिम ये मद्रास के ऊपर बना हुआ कोई फिल्म आसाम में हिट हो रहा है। हाँ, तो हम लोग को ये क्यों पूछा जाता है? मेरी कम में नहीं पूछा था, बिकॉज मेरी कम मेड बाय सम अदर पीपल, बट इफ वी आर मेकिंग ए फिल्म ऑन नॉर्थ ईस्ट, दैट फ्लेवर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग, तो हम लोग को भी वो सपोर्ट देना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। विश्वजीत, एक सवाल। हेलो विश्वजीत, क्या हुआ? कोई एक फिल्म ना एक फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाता है। तो ये जो हमारा स्वच्छ भारत या जो भी है, उससे पहले हम लोगों ने शूट भी किया था फिल्म, और हम लोगों ने पहले मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा था। तो मैं ये कितना फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये फिल्म के द्वारा लोगों को ये फील आएगा कि ये जो जहाँ है, हम लोग जो बॉम्बे में रहते हैं, ये हमारे लिए सौतेला है, लेकिन ये जगह पे हम लोग को रहना है। बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम Assam from almost 12 years ago.
but I won't be able to go back to Assam because मैं यहाँ मेरा घर ले लिया, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो I have to stay here only. ये अगर सिटी को हम लोग अगर सुंदर बनाए, यही आसिया बनाए, एक ऐसा आसिया जहाँ हम लोग अच्छी तरह से रह सके, जहाँ हम लोग खुशियों से पेड़ पौधे से कर सके, that would be best. नॉर्थ इंडिया का जो इशू है वाकई में बहुत इस समय गंभीर समस्या है, उस पर आपने फोकस डाला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और पलाश जी, आप ऐसे म्यूजिक के लिए जनक जाने जाते हैं, और क्या आपका नेटिव प्लेस जो है वो बनारस है, तो वहाँ आप बनारस जाएंगे क्या? वहाँ के लोगों को ये प्रोमो के लिए आपको देखने के वहाँ मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे हम लोग। इनफैक्ट आई थिंक 11 तारीख से पूरे इंडिया में हम लोग प्रमोशन शुरू करेंगे, जहाँ कि हम लोग डिफरेंट सिटीज में जाएंगे। बनारस तो जरूर जाऊंगा, वहाँ पे गंगा की बहुत प्रॉब्लम है, आपको पता ही है। पर्यावरण तो मतलब वहाँ पे लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, गंगा हमारी मैया है तो उसको गंदा तो नहीं करना है, तो बनारस जरूर जाएंगे। बट इसके साथ साथ हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बैंगलोर, दिल्ली, हर जगह जाएंगे। बट एक चीज मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमाल की बात है, हम लोग किसी भी प्रांत में रहे ना, एक्चुअली हिंदुस्तानी ही है। उतना ही गंद मचाते हैं, उतना ही गड़बड़ करते हैं, और उतने ही दिल वाले हैं, ये फैक्ट है। Well, coming from the theatre helps. I worked a lot. I was surrounded by a team of wonderful Assamese people. Yes, and my husband, who doesn't have an Assamese accent in the film. Only I do. So Biswajit was my biggest sort of reference point, inspiration, everything, guide as far as Ananya goes. We spoke a lot about this character in the beginning. We did a lot of workshops, the whole cast, all of us together. It was a tricky part, and I think being in Assam, we were lucky enough to shoot the Assam schedule right in the beginning. So we really got a chance to spend a lot of time there. Maya ji was there. Kimsleen. कैलाश खेर जी उपस्थित हुए हैं, और जोरदार तालियों से उनकी स्वागत होनी चाहिए। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैंने कल कैलाश को फ़ोन किया। कैलाश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सालों से। मैंने कहा कैलाश, मैंने एक फ़िल्म की है। कहता है कि यार ये तो बड़े गर्व की बात है, हम सब सिंगर्स में से एक एक्टर बना है, हम सबको गाजे बाजे के साथ ढिंढोरा पीटना चाहिए कि एक्टर बन गया। मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम है पाखी, एंड वो राजीव और अनन्या एंड कुही के साथ रहता है मुंबई में। वो असम से अपनी पेरेंट्स को छोड़ के आई है मुंबई में रहने के लिए, हेल्प करने के लिए उनको, और उनकी और अनन्या की बनती नहीं है, पर राजीव के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, एंड कुही इज़ हर बेस्ट फ्रेंड। बट बीच में कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कुही वो उसका कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। पिक्चर की कहानी नहीं बतानी है, वो पिक्चर तो देखेंगे उसके बाद। Actually, this is Kimsleen's first film, and this is her debut in the film. और इसमें जो her role is of a maid, but you know the thing is that she's not really a maid. She's being kept as a family member, but she has her own dreams. उसके अपने dreams हैं कि मैं यहाँ पे आई हूँ, अब मैं क्या करूँ? You know, what do I do next? So she has her own story going on. Ira has her own story going on, and I have my own story going on. The thing is, all these stories are intertwined at one point. They're all secting at one point. And then how things change, and we all find ourselves in a situation where we do not know how to get out of it. So that's the basic backdrop. Great, thank you very much, guys. Okay, क्योंकि the food is going to be served, there's drinks of course, and क्योंकि एक music launch है, तो of course. क्या मूड में आया कि चलो यार एक पिक्चर करते हैं? अच्छी जो फिल्म की जो स्टोरी थी, सबसे पहले तो वो जो सब्जेक्ट था,
और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में इतनी सेंसिटिव और सेंसिबल पिक्चरें बनती ही नहीं हैं। ऐसी फिल्म में होने का मुझे मौका मिला, मैं धन्य हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करने के लिए भी ठीक लोग होने चाहिए। शायद मैं उनमें से एक चोजन वन हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। जो मैसेज आप फिल्म के थ्रू करना चाह रहे हैं आम जनता को, वो मैसेज पहुँच पाएगा इसमें? देखिए, कोशिश तो है। इतने सालों से मैं यूफोरिया का म्यूज़िक बना रहा हूँ। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बेबी डॉल जैसे गाने हैं, तो वहाँ पे मायरी जैसा गाना भी है। तो मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अपना काम करता रहूँ, बाकी आशीर्वाद भगवान का है और जो इस देश की जनता है। देखिए, इस इंडस्ट्री ने शायद मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया, बस इस देश की जनता ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। उसी जनता के लिए मैं ये म्यूज़िक बनाता हूँ और जितने लोग सुनना चाहते हैं मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और जो नहीं सुनना चाहते हैं मुझे पता है किसी न किसी दिन वो भी सुनेंगे। अच्छा, म्यूजिक को लेकर तो आपने काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए, लेकिन जब ये सब्जेक्ट आया आपके पास तो लगा कि यार चलो मुझे ये करना ही चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगा कि मुझे ये करना ही चाहिए और मुझे पता था कि इस तरह का सब्जेक्ट करने के लिए शायद इनको कोई एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्टार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग सब सोचते हैं कि यार फिल्म में एक तरह का ह्यूमर होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, आइटम सॉन्ग होने चाहिए। मेरे साथ ये कोई बैगेज नहीं था। मुझे पता था कि मुझे एक अच्छा सब्जेक्ट चाहिए जिसको देख के मैं प्राउड फील करूँगा, और वही मैंने किया। जिस तरह का मुद्दा फिल्म में उठाया गया है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो भी है, तो वो चीज़ क्या वास्तविक जीवन में हो रही है? बिल्कुल हो रही है यार, आपको पता है हर जगह हो रही है। और एक डिस्क्रिमिनेशन है, एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स लोगों की एपैथी है, नॉर्थ ईस्ट के टुवर्ड्स लोगों की एक प्रॉब्लम है। बच्चे जो चाइल्ड आर्टिस्ट और टेलीविज़न में या फिल्मों में जो काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता था कि हम सबको शायद इसके बारे में किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आजकल फिल्में बन रही हैं उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप देखें, कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो इसका एक्चुअली एक सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है कि इस देश की इतनी आवाम है जिसके अंदर इतना दिमाग है और जिसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी है, जो इस तरह की सब्जेक्ट को देखना चाहती है, उन्हीं के लिए फिल्म है। फिल्म की थीम के हिसाब से म्यूजिक में भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है? कौन सा गाना आप? देखिए, 6 गाने हैं इस फिल्म में। एक तो सौतेला शहर जो आज आपने देखा, फिर हैया हो है इसमें, जो कि कम्प्लीटली असमीज फोक है, और 4 और गाने हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस पे बेस्ड हैं, और चारों गानों का अपना अपना एक क्या बोलूँगा, एक रूप है, एक एटीट्यूड है। और मैं बहुत आई फील वेरी प्राउड कि मैं इस तरह का म्यूज़िक बना पाया। मैसेज क्या दे रही है एक आम ऑडियंस? गाइज, मैसेज यही है सबको, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो ये है कि जैसा भी ये जहाँ है हमारा है, हमें इसको सुधार के सुंदर बना के रखना है, और उसके लिए हम लोग जो कर पाए हमें करना चाहिए। धन्यवाद। नाम रखा गया फिल्म का ऐसा ये जहाँ, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ऐसा ये जहाँ में काफ़ी मतलब लेयर्स हैं कि ऐसा ये जहाँ कैसा ये जहाँ बेसिकली आई थिंक दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द टाइटल कि ये कैसे वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसको एग्जामिन करना, इसको देखना, इसको एक और नज़रिए से मतलब प्रेजेंट करना। ये कहानी एक माइग्रेंट फैमिली की कहानी है, असमीज़ कपल की कहानी है। वो असम से बॉम्बे में रहते हैं और एक बड़े शहर में आने से क्या क्या मतलब डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, एक बहुत ह्यूमरस लाइट हार्टेड वे में दिखाया गया है। इसके कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स जो हैं, एक कपल हैं, उनकी एक 4 साल की बेटी हैं। मेरा कैरेक्टर का नाम है अनन्या, ये मेरे भाई हैं रॉन, ये मेरे घर में काम करने वाली ये खूबसूरत लड़की पाखी। और सब रिलेशनशिप्स को लेकर इस कहानी में दिखाया गया है कि मुंबई शहर में इतने इंडिया से मतलब तरह तरह के लोग आते हैं, कोने कोने से आते हैं,
मशहूर है मुंबई की, लोगों को मतलब खुलेआम से वेलकम भी करे, लेकिन जो मुश्किल उनको लगता है यहाँ पे लाइफ बनाने में वो भी दिखाया गया है। इस फिल्म में एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है, बहुत ऑब्वियस वे में नहीं, नेचर से दूर होकर इंसान को क्या हो सकता है, बड़े शहर में रहकर हम क्या क्या भूल जाते हैं, और ये सब को लेकर जहाँ हम रहते हैं वो किस तरह का जहाँ है। मेरा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक इंसान, इसमें ये तो नहीं दिखाया है कि एक आम आदमी और एक बड़े आदमी में कितना डिफरेंस होता है, लोग उसके नज़रिए किस तरह। ये आम आदमी की कहानी ही है, ये बहुत आम परिवार है, ये बहुत ये इसमें कुछ ग्लैमरस नहीं है बिल्कुल भी। वो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, हमने मलाड में शूट किया था, और वो अनन्या का बहुत फ़नी डायलॉग है, वो अपने हस्बैंड को एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाती है और कहती है सुनो, हम इस स्टेशन से एक भी स्टेशन पीछे गए हैं तो बस बात ख़त्म। तो अंधेरी आना है, मलाड से अंधेरी आ सकते हैं, हाँ, बोरीवली नहीं जाना, मतलब हम पीछे नहीं जा सकते, आगे बढ़ सकते हैं ज़रूर, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। तो रियल सिनेमा एक तरह से बहुत रियलिस्टिक। अपने किरदार के बारे में बताएं, आप क्या किस तरह का किरदार प्ले कर रहे हैं? इसमें मैं रॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। रॉन ईरा का भाई का रोल है, जो आसाम से वो भी है, इनके कज़िन ब्रदर का रोल प्ले कर रहा हूँ, और वो फोटोग्राफी का कोर्स करता है पुणे में। वो भी है कि उसके भी ड्रीम्स जैसे अनन्या के हैं, कैरेक्टर नेम अनन्या है, जैसे उनके ड्रीम्स बड़े हैं वैसे मेरे भी ड्रीम्स बड़े हैं। मैं सोचता हूँ बॉलीवुड यार एक छोटी चीज़ है, मेरे लिए तो हॉलीवुड बने हुआ है, मुझे हॉलीवुड में जाना है, वहाँ पे मुझे नाम रोशन करना है अपना। और तो ज़रूरी बात ये है कि इनके कैरेक्टर के प्लॉट में जब एंटर करते हैं तो बहुत चीज़ें बदल जाती है, ट्विस्ट आ जाता है कहानी। एक अच्छी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली अच्छे से चल रहा होता है, मेरे एंट्री के बाद से टोटली ट्विस्ट आ जाता है उसके अंदर। ईरा, अपनी मदर से आपने क्या क्या टिप्स लिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस रही। मेरी मदर यहाँ है, उनसे पूछिए ना। हम जानना चाहेंगे कि आपको वो क्या सिखाती हैं। आई थिंक मैं जब से 3-4 साल की थी तब से मैं सीख रही हूँ। मैं मम्मी की पूंछ थी जब मैं छोटी थी, और कंसिडरिंग मैं भी एक्ट्रेस बन गई हूँ, तो मैं बहुत ही मतलब यंग एज से उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ एक्ट्रेस के दौरान, लेकिन मैं थिएटर के दौरान एक्चुअली उनके साथ जो काम किया है उसमें मुझे मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि सम ऑफ माई बेस्ट वर्क हैज़ बिन विद माई मदर, बिकॉज शी इज़ माई मदर एंड शी नोज़ हाउ टू पुल दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ मी। जब आप पिक्चर कोई चुनती हैं तो क्या चीज़ उसको देखती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो ही मैं पिक्चर करूँगी, या कुछ? आई थिंक कि डाइवर्सिटी रोल्स में जो डाइवर्सिटी की वो कामना होती है कि कुछ अलग करें, कि कुछ नया करें। आई थिंक वो जो चैलेंज अपने आप को देना चाहिए इस कैरेक्टर में। अनन्या के साथ, अनन्या एक मदर है, 4 साल की लड़की की मदर है, वो आसामीज़ है। मैंने आसामीज़ एक्सेंट पे बहुत ध्यान दिया है इस फिल्म में, कैरेक्टराइजेशन पे बहुत ध्यान दिया है, कुछ आसामीज़ लाइंस भी बोले हैं। तो इस सब पे, और हम आसाम गए थे और हमारे क्रू में इतने अच्छे इंसान हैं आसामीज़, जहाँ जो आसामीज़ मतलब ईथॉस और कल्चर को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, और तो उनका मैंने बहुत मदद लिया। I think what is important when you're choosing a part is to challenge yourself a little bit and push yourself. So in this one, अनन्या के साथ मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ह्यूमर भी था, नेगेटिव शेड्स भी थे, और परिवार का भी जो इमोशनल जो कंटेंट भी था वो भी था। अच्छा, लव स्टोरी भी क्या कुछ है कि पलाश के साथ आपका कुछ है? पलाश था और हम एक मैरिड कपल हैं, तो खिटपिट है, ज़्यादा लव स्टोरी तो नहीं है। उसमें आपके भाई आ जाते हैं? भाई आ जाते हैं, तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। तकलीफ हो जाती है, और हमारे बच्चे को लेकर भी कुछ मतलब अलग ट्रैक पे कहानी चली जाती है। फिल्म में जीजा और साला का जो कैरेक्टर होता है एक्चुअल में, जो एक दूसरे में को पसंद नहीं करते, तो आपको पूरे इसमें मसाला वो दिखने वाले इस फिल्म। जैसे मेरी एंट्री होती है, आप देखेंगे कि जीजा जी बोलते ले देखो इसका साला आ गया, लाइक मेरा साला आ गया, वैसे तुम्हारा भाई आ गया, तो वैसे टाइप के। तो इतना इन्फीरियर कैरेक्टर को प्ले करने का मेंटली कितना आप तैयार थे, क्योंकि एक तरह से पिक्चर में आपको एक इन्फीरियर दर्जा दिया जा रहा है। ये इंफीरियर तो नहीं है, मतलब आई थिंक देयर आर सम नेगेटिव शेड्स, बट ही इज आल्सो अ वेरी लाइकेबल पर्सन, बिकॉज ही इज वेरी रिलेटेबल। ही इज लाइक अ लॉट ऑफ यंग पीपल टुडे जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो बहुत मतलब कुछ कर दिखाना चाहते हैं, एंड यू नो दैट कैन बी सीन इन अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव वे। सो ही इज आल्सो फनी वे, यू नो। और हमारे पिक्चर में इतना कुछ हैवी नहीं है, ये बहुत लाइट हार्टेड, ह्यूमरस, मतलब एक सोशल मैसेज भी है और मज़ेदार भी है, लेकिन हैवी फिल्म नहीं है ये।
आप अपने किरदार के बारे में बताएं किस तरह मैं पाखी की रोल कर रही हूँ। वो राजीव, अनन्या और कुही के साथ में घर में रहती है, काम करने वाली है। और इस फिल्म के में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट होता है। लोग यहाँ पे ये नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। जैसे आप अगर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कहीं के भी हो तो लोग पूछते हैं आप क्या यूपी से हो या ऐसे। उनके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी आप डायरेक्टली पूछते हैं कि आप चाइना से तो नहीं हो। ये काफी चाइना, नेपाली। आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं अभी। तो आपको वो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि ये भी हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे इंडिया का पार्ट है। करेक्ट। असम, अरुणाचल, मणिपुर, शिलोंग, जो भी हमारे 7 स्टेट्स हैं वो भी इंडिया के पार्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिनाई नहीं करता है कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है। नहीं, बट लोगों का नज़रिया चेंज नहीं होता। आप देखेंगे तो इन्हें ये नहीं पूछा जाता कि आप इंडिया के कहाँ से हैं। आप पहले पूछते हैं अच्छा आप नेपाल से हो, आपके कंट्री में कौन से। कभी कभी मेरे डायरेक्टर जो बिस्वजीत बोरा वो भी असम से बिलोंग करते हैं। एक बार मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ के जो नॉर्मल हवलदार जो होते हैं लाइसेंस पूछे तो आपके पास कहाँ फॉरेन का लाइसेंस है, लाइक जो ट्रैवलिंग, तो उनका भी फेस थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के जैसा दिखता है। तो ये सारे इश्यूज जो देखने को मिलेंगे आपको ट्रेलर में भी और फिल्म में भी बहुत अच्छे वे से, आप प्रिची वे से नहीं बोल सकते पर अच्छे से दिखाया गया है कि वो भी हमारे पार्ट हैं और कैसे स्टोरी आगे बिल्ड होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। For me, because it's my first Bollywood film, and earlier I made an Assamese film, and this is the first Hindi film I am trying, and it talks about many things in terms of the globalization, in terms of importance of plantations, in terms of mother tongue influence in India, in terms of the small cities and the bigger cities. And we are trying to see if you say about environment in then people would feel it's a preachy film. People won't be able to come this kind of film. They won't be able to relate to it. So I thought let's make this film in in such a way so that people can come to see the film. So I am just treating this film. It's a very light-hearted film, and so people would, I think, love to see the film. Why you choose Palash Sen and Ira Dubey as a character? See, because they are not related to character. One second. See, Palash, I was looking for, that the character is an Assamese character. So I was looking for a character where I can feel not from the outside. It should be from insides, that root, actually, that character is rooted from his own village, and he's very grounded. So I thought when I met Palash, that time that when I saw him, that he's that whole appearance, I was slightly, I thought he won't go in this character. But when I talked to him, and I found him it's very rooted to his own values. So I thought this is the character I was looking for. And second thing, Ira, when I I didn't know about her, and I just went for a show for that stage show theater in PTV theater. Then I thought immediately when I saw that her performance, and immediately I could connect my Ananya. Whoever I was thinking she would be the best part for this particular film. So she has done lots of research in terms of, because she is playing an Assamese character. So in terms of that mother, that tongue. अभी मैं जैसे बोलता हूँ हिंदी, मेरा हिंदी भी proper नहीं है. So that influence, pronunciation. So she tried to जितना मेहनत करना चाहिए था इतना मेहनत किया. So I think she has done fabulous job in this film. Yeah, definitely, because she portraying like that. Yeah, see that because I have come from a very small family, from Assam, and when into 2003 when I came to Bombay, and I was very young that time, I was 22 years old.
Then I realized that she suddenly like shifted to a big city like in Mumbai. So it was a very vast difference. Like it's a greenery city, and suddenly when you see it from your window, it's like only concrete jungle. So I thought I was alone that time because I was very attached to my that greenery and all. Then I thought I immediately connect with the story. I wrote it in 2007. This story, Aisa Ye Jahan. So then I thought no, it can be a documentary, not in a film. Like people won't see this film. Then in 2011 I developed the story because gradually I could relate to Bombay's life, Mumbai's life, and so धीरे-धीरे मैंने उसको develop किया. धन्यवाद. Yeah, thank you.